سوچیں سردی کی ایک سخت رات ہے اور آپ ایک پیزا ڈیلیوری کرنے نکلتے ہیں۔ جس لوکیشن پر آپ پہنچتے ہیں وہ بہت سنسان ہے اور ویران علاقے میں۔ دروازہ کھلتا ہے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا اور پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ وہیں رکھ دو پیزا۔ پیچھے مڑتے ہیں تو دروازہ بند اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسی کچھ سٹوریز ہیں جو لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آئے یا کسی بھی قسم کا تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اور ایک ای میل ایڈریس ہے، آپ جیسے چاہیں لکھ کر یا وائس میسج کے ذریعے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی سٹوریز بہت خوفناک ہونے والی۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی کا احسار کر لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ہم ان مخلوقات کے بارے میں بہت ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت قریب آنے لگتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے اپنی سٹوریز کی طرف۔ میرا نام سید فرقان ہے، میں اس وقت بھی فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں اور یہ واقعہ آج سے چند سال پرانا ہے جب میں ایک کمپنی میں رائڈر تھا۔ یہ کہانی بالکل سچی، اس میں نہ کوئی بڑھا چڑھا کر بات ہے اور نہ کوئی فرضی سین۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں آج بھی کسی کو سناتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے آپ کے چینل پر ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے کی سٹوری سنی۔ وہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میں نے موبائل بند کیا اور بس یہی سوچتا رہا کہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی کہانی خود سناؤں گا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں اسلام آباد میں ڈیلیوری کرتا تھا۔ اسلام آباد کی وہ نئی سوسائٹیز جہاں دن میں تو تھوڑی بہت چہل پہل ہوتی ہے لیکن رات کو وہ جگہیں بالکل ویران ہو جاتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو اکثر رائڈر ایسی سوسائٹی میں جانے سے گھبراتے تھے، خاص طور پر لیٹ نائٹ ڈیلیوریز، لیکن میں مجبور تھا۔ میں ہینڈ ٹو ماؤتھ کماتا تھا، جو کماتا وہی گھر میں خرچ ہوتا، اس لیے میرے لیے ہر رائڈ قیمتی تھی، چاہے چھوٹی ہو یا لمبی۔ ایک رات میں معمول کے مطابق ڈیلیوریز کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے تھے، سردیوں کا موسم تھا۔ اسلام آباد میں اس وقت سڑکیں پہلے ہی سنسان ہو جاتی۔ اسی دوران میرے موبائل پر ایک نیا آرڈر آیا۔ لوکیشن دیکھتے ہی دل نے ہلکا سا چونکا۔ ایک نئی سوسائٹی جہاں ابھی مکانات بن رہے تھے۔ وہ بلاک جو سوسائٹی کے بالکل آخری حصے میں تھا۔ رائڈ لمبی تھی لیکن میں نے ایکسپٹ کر لی کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ کسٹمر نے کال پر بتایا آپ کھانا وہیں دے دیں، مزدور ہوں گے، پیسے آپ ان سے نہ لینا، میں آپ کو ایزی پیسہ سے پیمنٹ کر دوں گا۔ یہ بات میرے لیے نئی نہیں تھی، اکثر لوگ ایسا کرتے تھے۔ میں نے آرڈر اٹھایا، بائک سٹارٹ کی اور منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوسائٹی کے گیٹ تک تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو لوکیشن اب بھی 7-8 منٹ آگے دکھا رہی تھی۔ اے اور بی بلاک میں پھر بھی کچھ گھر بنے ہوئے تھے، کچھ لائٹس، کچھ گاڑیاں، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا سب کچھ بدلنے لگا۔ اب نہ گھر تھے نہ لوگ، صرف لمبی سیدھی سڑک، دونوں طرف خالی پلاٹس اور ہر کچھ فاصلے پر چلتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس۔ خاموشی اتنی تھی کہ بائک کی آواز خود مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ دل میں ہلکا سا خوف آیا لیکن میں نے خود کو سمجھایا پہلے بھی تو آیا ہوں ایسی جگہوں پر۔ لوکیشن اب کہہ رہی تھی کہ 2 منٹ باقی ہیں اور تب میں نے وہ گھر دیکھا، چاندنی میں ایک انڈر کنسٹرکشن مکان جس کا صرف ڈھانچہ بنا ہوا تھا، نہ گیٹ پر لائٹ نہ اندر کوئی حرکت۔ میں وہیں رکا، میپ میں آیا یو ہیو ارائیوڈ، لیکن گھر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کسٹمر کو کال کی، اس نے کہا اوپر آواز دیں، مزدور اوپر سو رہے ہیں، ہارن دے دیں، وہ سمجھ جائیں گے۔ میں نے بائک کا ہارن دیا۔ اوپر والے فلور سے ایک شخص نمودار ہوا، کھڑکی نہیں تھی، صرف ایک موٹی ترپال جس کے پیچھے سے اس نے منہ نکالا۔ اس نے نیچے دیکھ کر کہا یار آپ اوپر ہی آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ رکا اور وہ بات کہی جس نے میرے دل میں پہلی بار واقعی خوف ڈال دیا۔ اس نے کہا ایک کام کرنا، جب نیچے اندر داخل ہو تو اونچی آواز میں کہہ دینا جو بھی ہے میں اوپر کھانا دینے جا رہا ہوں،
तंग करने नहीं आया। मैं वहीं साकित रह गया। मेरे दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। ये बात नॉर्मल नहीं थी। मैंने कहा, आप नीचे आ जाए ना। उसने अजीब अंदाज में कहा, यार हम पूरा दिन काम करके थके हुए, मेहरबानी करके आप ही ऊपर आ जाए। फिर दोबारा वही बात, बस नीचे आते हुए वो जुमला कह देना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने वो बातें भी सुनी हुई थी कि वीरान जगहों पर ऐसा कहना बेहतर होता है। तो मैंने खुद को समझाया, चलो सिर्फ एक जुमला ही तो है। मैं अंदर दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में कहा, जो भी यहाँ मौजूद है, मैं ऊपर खाना देने जा रहा हूँ, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। कसम से कह रहा हूं, जैसी मैंने ये बात कही मुझे वाज़ेह एहसास हुआ कि किसी ने सुन लिया। ऐसा लगा जैसे खामोशी और गहरी हो गई हो। नीचे का ग्राउंड फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काम कभी हुआ ही ना हो। लेकिन ऊपर का फ्लोर काफी हद तक मुकम्मल था। मैं तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ा। दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से खाना देकर निकल जाऊं। ऊपर 3-4 मजदूर थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, कहा, बहुत राइडर आने से मना कर देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। खाना दिया, पेमेंट फौरन आ गई, अच्छी टिप भी मिली, लेकिन मेरा दिल अभी तक नीचे ही था। जब मैं वापस नीचे आया तो वही एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा। मैंने जैसे तैसे हेलमेट हाथ में लिया। मेरा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, बस बाइक स्टार्ट हो जाए, बस यहां से निकल जाऊं। मैंने हेलमेट सर पर रखा ही था कि मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे किसी ने दरवाजा हल्का सा खोला। कोई जोरदार आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक मध्यम सी हरकत। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, लेकिन मैं कसम खा कर कह सकता हूं, कुछ लम्हे मुझे यूं लगा जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा। अगले ही लम्हे टिक की आवाज आई, दरवाजा दोबारा बंद होने की आवाज। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। रोंगटे ऐसे खड़े हुए कि मैंने खुद अपनी सांस कानों में सुनी। मैंने कोई सोच नहीं की, कोई तजुर्बा नहीं, बस फौरन बाइक को किक मारी। एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई और मैं वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी मुझे अच्छे से एहसास हुआ था कि वो नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें भारीपन है, कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। और जब मैं निकला तो मुझे दरवाजे के पीछे से कोई देख रहा था, जबकि मजदूर तो ऊपर वाले फ्लोर पर थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अब सीने से बाहर आ जाएगा। मैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ गया। वहां पहुंचकर मैंने बाइक साइड पर खड़ी की और काफी देर खामोश बैठा रहा। मेरे जहन में बार बार वही मंजर चल रहा था, उसी ग्राउंड फ्लोर का, वहां का भारीपन। मैं खुद को यही कहता रहा, शायद वहम हो, थकन थी, अंधेरा था, लेकिन दिन मानने को तैयार नहीं था। दिन गुजरते गए, मैं अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन उस सोसाइटी का नाम और वो घर मेरे दिमाग के किसी कोने में खामोश बैठा रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैं रेस्टोरेंट पर खड़ा था कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नया ऑर्डर, लेकिन लोकेशन देखी, मेरा दिल वहीं रुक गया। वही सोसाइटी, वही ब्लॉक, वही जगह और ऑर्डर देने वाला नाम भी वही था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर वही बात, घर का खर्च, रोज का टारगेट और पिछली बार की अच्छी टिप। मैंने खुद से कहा, इस बार नीचे ही बुला लूंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा, और मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उस रात ऑर्डर थोड़ा लेट आया था, तकरीबन मेरी आखिरी राइड थी। मैंने सोचा बस ये करके सीधा घर। मैं खाना लेकर रवाना हो गया। सोसाइटी के गेट पर पहुंचते ही मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ आने लगा, जैसे मेरा दिल पहले ही कह रहा हो ये जगह ठीक नहीं है। मैंने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। जब मैं उस ब्लॉक में दाखिल हुआ तो इस बार एक और चीज ने मुझे चौंका दिया। सड़क के किनारे मैंने एक जंगली जानवर देखा जो कि बहुत खौफनाक लग रहा था।
वो जानवर उसके पीछे कुछ और भी थे, क्योंकि उस सोसाइटी के एंड में जंगल और पहाड़ का कुछ हिस्सा लगता था। वो उसी तरफ से आए थे। वो अचानक अंधेरे से निकले और भाग गए। मेरे दिल में और खौफ शामिल हो गया। अब किसी और चीज का नहीं बल्कि जानवरों का भी डर था। मैं अल्लाह का नाम लेता हुआ उसी घर के सामने रुका, बाइक बंद की, फोन निकाला और कॉल की। हॉर्न भी दिया और ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा कॉल की। कस्टमर ने कहा, मैंने मजदूरों को कॉल की है, वो फोन नहीं उठा रहे, आप जरा वेट करें। उसी लम्हे मुझे ग्राउंड फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दीवार पर कोई चीज मारी हो। फिर साफ साफ चलने की आवाज। ऐसा नहीं था कि कोई दौड़ रहा हो, बल्कि आहिस्ता भारी कदमों की आवाज। मेरे दिल की धड़कन दोबारा तेज हो गई। मुझे लगा जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर गेट की तरफ आ रहा हो। और फिर मुझे महसूस हुआ कि गेट के अंदर अंधेरे में कोई खड़ा होकर झांक रहा है। मैंने आंखें जोर से मींच ली। फिर दोबारा देखा। उसी वक्त कस्टमर की कॉल आ गई। उसने कहा, मजदूर थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रहे हैं, आप वेट कर लें, मैं आपको अच्छी टिप भी दूंगा। मैंने बाइक थोड़ा पीछे कर दी और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे दिल में अब सिर्फ एक सवाल था, अगर मजदूर घर पर नहीं तो फिर अंदर कौन था? मैंने हिम्मत करके कस्टमर को दोबारा कॉल की। मैंने कहा, भाई मुझे नीचे चलने की आवाज आई है। उसकी आवाज अचानक बदल गई। उसने फौरन कहा, आप घर के अंदर मत जाना, भले से दरवाजा खुलाओ, तब भी अंदर मत जाना, बस बाहर रहे, मजदूर आते ही होंगे। ये सुनकर मेरा खौफ और बढ़ गया। मैंने पूछा, कोई मसला है क्या? वो टाल मटोल करता रहा और उसी दौरान मुझे फिर वही एहसास जैसे दरवाजा जरा सा खुला हो और अंधेरे से एक साया सा हल्का सा हरकत करता महसूस हुआ। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। मैं फुटपाथ पर बैठा सिर्फ ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह बस ये लोग आ जाएं। मैं फुटपाथ पर बैठा था, बाइक गेट के सामने खड़ी थी और मेरा ध्यान बार बार उसी दरवाजे पर जा रहा था। अंधेरा था, लेकिन ऐसा अंधेरा नहीं जिसमें कुछ नजर ना आए, ऐसा अंधेरा जिसमें लगता है कुछ छुपा हुआ है। मेरे कान हर छोटी आवाज पर लगे हुए थे। कभी मुझे लगता जैसे अंदर से कोई हल्का सा कदम रख रहा हो, कभी लगता जैसे कोई बस वहीं खड़ा है और हरकत नहीं कर रहा। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, वक्त जैसे रुक गया। फिर अचानक सड़क के मोड़ से मुझे चंद साए नजर आए, पहले धुंधले फिर वाज़ेह। 4 आदमी पैदल आ रहे थे। मैंने गौर से देखा, शलवार कमीज में थे, कांधों पर थैले, थके हुए कदम। मेरी जान में जान आई। वो मेरे करीब आए। उनमें से एक को देखते ही मेरा दिल चौंका। ये वही था, वही मजदूर जो पहली रात ऊपर मौजूद था। मैंने फौरन उसे पहचान लिया। उसने मुझसे कहा, भाई माफ करना, देर हो गई। मैंने जल्दी खाना पकड़ाया और दिल ही दिल में बस यही सोचा, अब बस पेमेंट हो जाए और मैं यहां से निकलूं। मैंने कस्टमर को कॉल की, पेमेंट फौरन आ गई। मजदूरों ने खाना ले लिया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे दिल में एक बात काफी देर से अटकी हुई थी। मैंने हिम्मत की और उस मजदूर से कहा, एक बात पूछूं आपसे? वो रुक गया। मैंने कहा, पिछली दफा मैं जब आया था तो आपने कहा था कि अंदर जाते हुए ये जुमला बोल देना कि अगर कोई यहाँ मौजूद है तो हट जाए, मैं ऊपर खाना देने जा रहा हूं। वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी मेरे सवाल से ज्यादा भारी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई मसला है? उसने एक नजर घर की तरफ डाली, फिर इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, भाई सच सुनना है? मैंने सर हिलाया। उसने कहा, इस घर पे आसेब है। मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और बोला, बस जब नीचे वाले पोर्शन में काम करते थे तो मैं बाकायदा एहसास होता था कि हम अकेले नहीं हैं। उसने बताया, कभी रात को कंबल खुद ब खुद सिरक जाता, कभी किसी के कांधे पर
जैसे हाथ रखा जाए, कभी थप्पड़ जैसी आवाज और कभी खाने में से बोटियां गायब। मैं खामोशी से सुनता रहा। उसने कहा, हमने नीचे का काम बंद कर दिया, अब सिर्फ ऊपर काम करते हैं। फिर उसने वो बात कही जो मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरी। वो बोला, वो नहीं चाहता कि यहाँ घर बने। मेरे ज़हन में वो सारी चीजें एक एक करके जुड़ने लगी। अंदर जाते वक्त वो जुमला कहना, नीचे भारीपन, चलने की आवाज, दरवाजा खुलने का एहसास, सब कुछ। मैंने पूछा, फिर आप लोग रात को कहाँ सोते हैं? वो बोला, सेठ ने साइड वाले प्लॉट पर झोंपड़ी बना दी है, हम रात वहीं रहते हैं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यहाँ रात को कोई नहीं सोता। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो बोला, बहुत मजदूर डर कर भाग गए, हम बस मजबूरी में रुके हैं। मैंने एक आखिरी सवाल किया, वो नुकसान तो नहीं पहुंचाता? उसने सर हिलाया, नहीं, बस अपनी मौजूदगी महसूस करवाता है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कपकपी आई। मैंने बाइक स्टार्ट की और जाते जाते दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया, अब इस जगह कोई राइड कबूल नहीं करूंगा। मैं वहां से निकला, सड़क पर आया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जैसे ही मैंने उस गली का मोड़ काटा, मुझे लगा कोई अब भी वहीं खड़ा और मुझे देख रहा है। मैं बाइक लेकर उस गली से निकल आया। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। मैंने बाइक तेज की, जैसे पीछे कुछ है और मैं उससे फासला बढ़ाना चाहता हूं। सड़क सीधी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा मोड़ आ चुका था। घर पहुंचा तो मैंने किसी से बात नहीं की, कपड़े बदले, लेकिन वो बोझ जिस्म से नहीं उतरा। बिस्तर पर लेटा तो आंखें बंद करते ही वही मंजर सामने आ गया। अंधेरा, ग्राउंड फ्लोर, भारी कदमों की आवाज, दरवाजे की वो हल्की सी हरकत। मैंने करवट बदली, फिर बदली, मैं करवटें बदलता रहा उस रात। अगले दिन मैं दोबारा काम पर गया, सब कुछ नॉर्मल था, ऑर्डर, राइड्स, लोग, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब नई सोसाइटी में अंधाधुन नहीं चाहता था। मैं अब खामोशी को हल्का नहीं लेता था। कुछ दिन बाद वो सोसाइटी की एक और राइड आई। मैंने लोकेशन देखी और बगैर सोचे कैंसिल कर दी। दिल में कोई पछतावा नहीं था। वक्त गुजरता गया, मैंने कंपनी भी बदल ली, जिंदगी आगे चलती रही, लेकिन वो वाकया मेरे साथ चलता रहा। आज भी अगर मैं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन घर के पास रात को रुक जाऊं या किसी वीरान जगह बाइक बंद हो जाए तो मेरा दिल बेवजह तेज हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो क्या था, मैं ये भी नहीं कहता कि वो आज भी वहां है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, कुछ जगहें खाली नहीं होती और हर दरवाजा सिर्फ ताले से बंद नहीं होता। उस रात मैं वहां से निकल आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ वहीं नहीं रुका। तो ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और फूड डिलीवरी बॉय की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और ये वाकया कराची का। ये बात पिछले साल के जब मैं दिन में एक लॉजिस्टिक कंपनी में डिस्पैचर था और रात को फूड डिलीवरी का काम करता था। मेरी दिन की नौकरी की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि घर आराम से चल जाता, इसलिए मैं शाम 5 बजे दफ्तर से फारिग होकर फूड डिलीवरी की राइड ऑन कर लेता था। अक्सर रात 10, कभी 11, 12 बजे तक जितनी हिम्मत होती ऑर्डर लेता रहता। जब जिस्म जवाब दे देता मैं सीधा घर चला जाता। मैं ज्यादा लेट नाइट नहीं करता था, लेकिन उस रात मैंने सोचा था बस एक आखिरी राइड, फिर सीधा घर। और शायद वही मेरी जिंदगी की सबसे अजीब राइड थी। रात के तकरीबन 12 से 1 बजे होंगे जब मुझे एक ऑर्डर मिला। लोकेशन देखी तो कराची के सदर एरिया की तरफ थी। वहां एक जगह है जहां अंग्रेजों के जमाने के पुराने फ्लैट्स हैं, खस्ता हाल, भारी दीवारें और अजीब सी खामोशी। ऑर्डर 6ठी मंजिल का था। कस्टमर ने कॉल पर कहा, खाना दरवाजे पर बाहर रख देना, तस्वीर लेकर मुझे भेज देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, अजीब बात यह थी कि
खाना दरवाजे के पास रख के उसकी पिक्चर ले लेनी। मैं खाना लेकर लोकेशन पर पहुंचा। नीचे गंदी सी पार्किंग थी, अंधेरी, बदबूदार और वीरान। मैंने बाइक लगाई और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वहां सिर्फ एक लिफ्ट थी, पुरानी, सुस्त और अजीब आवाजें निकालती हुई। ऊंची जगहों से मुझे वैसे ही थोड़ा डर लगता है, और उस लिफ्ट ने वो डर और बढ़ा दिया। लेकिन मैंने खुद को कहा बस 6ठी मंजिल खाना रखना है और निकल जाना है। लिफ्ट ऊपर पहुंची, दरवाजा खुला और जैसे ही मैं बाहर निकला मेरी सांसें खुद ब खुद रुक सी गई। 6ठी मंजिल वीरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर पर कोई रहता ही नहीं। ज्यादातर फ्लैट बंद पड़े थे, लाइट्स बंद थी, खामोशी इतनी कि अपने कदमों की आवाज भारी लग रही थी। मुझे जो फ्लैट नंबर दिया गया था वो तकरीबन फ्लोर के बिल्कुल आखिर में था, जहां अंधेरा और ज्यादा था। मैं फ्लैट गिनता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ दिल थोड़ा और तेज धड़क रहा था। आखिरकार मैं उस फ्लैट के सामने पहुंच गया। दरवाजा बंद था, अंदर से रोशनी की कोई लकीर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर भी कोई नहीं है। मैंने पिज्जा दरवाजे के आगे रखा, फ्लैश ऑन करके पिज्जा की तस्वीर ली, फ्लैट नंबर की भी तस्वीर ली और सब कस्टमर को भेज दिया। चंद लम्हों बाद मैसेज सीन हो गया और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास वहीं रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, बस खड़ा है, खामोश। मैं लिफ्ट में आया और नीचे उतर गया। उस वक्त मैंने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात घर पहुंचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिल में बैठ गई थी। मैंने खुद को समझाया पुरानी बिल्डिंग है, रात का वक्त था, वहम हो गया होगा, और ये सोचकर मैं सो गया। तकरीबन 2 रातें गुजर गईं। काम वैसा ही चलता रहा। दिन में ऑफिस, शाम को फूड डिलीवरी। फिर तीसरी रात वही नाम मेरे मोबाइल पर दोबारा चमका। वही ऑर्डर, वही लोकेशन, वही 6ठी मंजिल। एक लम्हे के लिए मेरे अंगूठे ने एक्सेप्ट के बटन पर रुक कर सोचा। दिल ने कहा छोड़ दे, कोई और राइड आ जाएगी। लेकिन दिमाग ने कहा पिछली बार भी तो कुछ नहीं हुआ था। और फिर वही बात, टिप अच्छी थी और मैं जरूरतमंद था। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मैं दोबारा उसी बिल्डिंग के सामने था। नीचे वही अंधेरी पार्किंग, वही खामोशी। मैंने बाइक लगाई और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट इस बार और भी सुस्त लग रही थी। आखिरकार 6ठी मंजिल पर रुकी, दरवाजा खुला और फिर वही मंजर। पूरा फ्लोर वैसे ही सुनसान, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहां आकर रुक जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस फ्लैट की तरफ बढ़ा। एक बात इस बार ज्यादा वाज़िह थी। दरवाजे के नीचे अब भी कोई रोशनी नहीं थी, जैसे अंदर वाकई कोई बल्ब जलाया ही ना गया हो। मैंने पिज्जा दरवाजे के आगे रखा, फ्लैश ऑन की, तस्वीरें ली और भेज दी। चंद सेकंड बाद पैसे आ गए। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। मैं वापस लिफ्ट के सामने आकर खड़ा हो गया और उसी लम्हे मेरे दिल में अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई। मैंने खुद से सोचा आखिर ये पिज्जा उठाता कौन है। मैंने कभी इस फ्लैट का दरवाजा खुलते नहीं देखा था, कभी किसी को निकलते दाखिल होते नहीं देखा। इस बार मैंने एक फैसला किया। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया नहीं, बस ऐसे खड़ा हो गया जैसे इंतजार कर रहा हूं। मुंह लिफ्ट की तरफ था, लेकिन नजरें उस फ्लैट की दरवाजे पर थी। चंद सेकंड गुजरे, पिज्जा अभी भी वहीं रखा था। फिर नीचे से लिफ्ट कॉल हुई। लिफ्ट की लाइट ऑन हो गई, नंबर स्क्रॉल होने लगे। मेरी नजर सिर्फ 2 सेकंड उस लाइट पर गई और जब मैंने वापस दरवाजे की तरफ देखा, पिज्जा गायब था। ना कोई आवाज, ना दरवाजा खुलने की, ना कदमों की। बस एक लम्हे में पिज्जा वहां नहीं था। मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ गई। मैंने इर्द गिर्द देखा, पूरा फ्लोर वैसे ही खाली, कोई साया नहीं, कोई हरकत नहीं। मैंने खुद से कहा
मुमकिन है किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, लेकिन दिल जानता था इतने कम वक्त में ये मुमकिन नहीं था। मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ और नीचे आ गया। उस रात मैं देर तक यही सोचता रहा, ये क्या था, कोई इंसान या कुछ और मुझे ये भी एहसास हुआ जब भी मैं उस फ्लैट के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे साफ महसूस होता है कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होता है, खामोशी से इंतजार में। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो काफी देर तक मेरे दिमाग में वही एक मंजर चलता रहा, लिफ्ट की लाइट और पिज्जा का अचानक गायब हो जाना। मैंने खुद को समझाया शायद किसी ने बहुत आहिस्ता से दरवाजा खोला हो, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन गुजर गए। मैंने खुद से वादा किया कि अगर दोबारा वही ऑर्डर आया तो मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, जो चीज हम नहीं चाहते वही सामने आ खड़ी होती है। तकरीबन 3-4 दिन बाद वही ऑर्डर तीसरी बार मेरे मोबाइल पर आ गया। वही फ्लैट, वही छठी मंजिल। एक लम्हे को मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर वही सोच, बस खाना रखना है, तस्वीर लेनी है और निकल जाना। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। इस बार दिल पहले से ज्यादा भारी था, जैसे कुछ होने वाला हो, और मुझे पहले से एहसास हो। मैं दोबारा उसी पुरानी बिल्डिंग के सामने था। बाइक लगाई, लिफ्ट की तरफ बढ़ा और लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो मुझे लगा जैसे अंदर हवा भी रुक गई हो। छठी मंजिल, दरवाजा खुला और जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे कुछ सुना ही दिया, एक हल्की हल्की बच्चों की हंसी। मैं वहीं रुक गया, मेरे कान अपनी जगह जम गए। ये आवाज बिल्कुल साफ थी, ऐसा नहीं कि वहम हो, ऐसा नहीं कि दूर से आ रही हो, बिल्कुल उसी कोने से जहां वही फ्लैट था। मैंने आके देखा, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज वाज़िया थी, जैसे बच्चे दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, उनके कदमों की हल्की हल्की धमक। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी लम्हे मुझे लगा जैसे वो बच्चे दौड़ते हुए उसी फ्लैट में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि उस फ्लैट का दरवाजा एक लम्हे के लिए खुला और फिर बंद हो गया, लेकिन मैंने कोई बच्चा देखा नहीं था। मेरे जिस्म में ठंड सी दौड़ गई। दिल ने जोर से कहा, ये ठीक नहीं है। मैं वहीं खड़ा रह गया। पूरा फ्लोर पिन ड्रॉप साइलेंस में था, लेकिन मेरे कानों में अभी तक बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला। मैंने सोचा बस पिज्जा रख, तस्वीर ले और निकल जा। मैं तेज कदमों से उस फ्लैट की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा मुझे एक और एहसास हुआ, इस बार पहले से मुख्तलिफ। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, बहुत करीब, इतना करीब कि मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सांसें भारी थी, गहरी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो और मेरी हरकतों को गौर से देख रहा हो। मैंने हाथ कांपते हुए पिज्जा रखा, फ्लैश ऑन किया, तस्वीर ली और एक लम्हे में मुझे पूरा यकीन हो गया मैं अकेला नहीं हूं। मैंने फौरन तस्वीर भेज दी, पेमेंट चेक भी नहीं की। मेरा बस एक ही मकसद था, यहां से निकलना। मैं मुड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन लिफ्ट नीचे थी और बहुत स्लो थी। मेरे दिल ने कहा सीढ़ियों से चला जाऊं। मैंने लिफ्ट को अवॉइड किया, सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां अंधेरे में थी, खामोश, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा मुझे लगा जैसे कोई उस फ्लैट से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आ रहा। अब मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे लगा ऐसे जैसे कोई अब सीढ़ियों पर मेरे पीछे उतर रहा। कदमों की आवाज भारी, मेरे कदमों से मुख्तलिफ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं देखने की हिम्मत ही नहीं रख पा रहा था। और फिर बिल्कुल आखिरी सीढ़ी के पास मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरे कान के करीब, भारी, गैर इंसानी। तुझे जानना है ना अंदर फ्लैट में कौन रहता है? अगली बार आएगा तो देख लेगा। मेरा पूरा जिस्म सुन हो गया। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैं सीधा नीचे पहुंचा। चौकीदार बैठा था, लेकिन मैं रुका नहीं। बाइक स्टार्ट की और उस जगह से निकल गया। उसके बाद मैंने इस फ्लैट का कोई ऑर्डर कबूल नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता है।
मैं बाइक लेकर उस पुरानी बिल्डिंग से निकल आया था। सड़क पर आया तो कराची की हवा बिल्कुल वैसी थी, गाड़ियां भी चल रही थी, लोग भी थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं सीधा घर गया। उस रात मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने मोबाइल साइलेंट पर रखा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद करते ही वही चीज सामने आने लगी। बच्चों की हंसी, दरवाजे के पीछे भारी सांसें, सीढ़ियों पर वो कदम और वो आवाज। अगली बार आएगा तो देख लेगा। मैंने पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली। ज़हन बार बार उसी सवाल पर आकर रुक जाता था, वो फ्लैट, वो आखिर था क्या। अगले दिन मैं दोबारा अपनी रूटीन में आ गया। दिन में ऑफिस, शाम को फूड डिलीवरी। लेकिन मैं बदल चुका था। अब मैं हर पुरानी बिल्डिंग को वैसे नहीं देखता था। इसके बाद जब भी इस फ्लैट का ऑर्डर आया, मैंने हमेशा इग्नोर किया। आज भी नहीं जानता कि उस फ्लैट में कौन रहता था। मैं ये भी नहीं कहता कि वो इंसान था या कुछ और, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, वो नजर नहीं आता था लेकिन मौजूद था। वो इंतजार करता था और वो देखता था। वो बच्चे जिनकी आवाजें थीं लेकिन जिस्म नहीं थे, वो कदम जिनकी आहट थी लेकिन साया नहीं था, और वो आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी। मैं आज भी सोचता हूं, अगर उस रात मैं लिफ्ट का इंतजार करता रहता तो क्या होता। अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो क्या होता। ये कहानी सुना ना पाता। मैं वहां से निकल आया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई वहां गैर फितरी जरूर था, और शायद अभी भी किसी का इंतजार कर रहा, किसी और फूड डिलीवरी बॉय का। ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की स्टोरी की तरफ। मैं अपना नाम किसी वजह से शेयर नहीं कर सकता। मैं पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूँ। ये बात उस वक्त की जब मैं अक्सर रात को डिलीवरीज किया करता था, क्योंकि दिन में कमाई पूरी नहीं होती थी, इसीलिए रात को निकलना मजबूरी बन चुका था। उस दिन भी मैंने सोचा बस एक आखिरी ऑर्डर, फिर घर चला जाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी, सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया था, हवा में अजीब सी खामोशी थी। उसी दौरान मेरे मोबाइल पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन देखकर मैं चंद सेकंड रुका। ये वो रोड था जिसे लोग आमतौर पर अवॉइड करते थे। दिन में भी वहां कम गाड़ियां गुजरती और रात को तो बिल्कुल सन्नाटा होता। मैंने खुद को समझाया, अक्सर जाता हूं ऐसे रास्तों पर, आज भी कुछ नहीं होगा, और मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़क तंग होती जा रही थी। दोनों तरफ झाड़ियां, कुछ दरख्त और उनके पीछे मुकम्मल अंधेरा। स्ट्रीट लाइट्स काफी फासले पर लगी थी। बाइक की आवाज खामोशी में गैर फितरी लग रही थी। चलते चलते लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे किसी दरख्त के पीछे कोई खड़ा। मैंने बाइक की रफ्तार कम की, दोबारा गौर से देखा, कुछ नहीं था। मैंने खुद को कहा वहम है, थकन है, और दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन दिल अब थोड़ा सा भारी हो चुका था। कुछ मिनट बाद मुझे फिर वही एहसास हुआ, इस बार किसी दूसरे दरख्त के पीछे, जैसे कोई सर निकाल कर मुझे देख रहा। मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा, वो सीधा चलता रहा। अचानक बाइक ने हल्का सा झटका लिया। मैंने फौरन क्लच दबाया। अगले ही लम्हे बाइक बंद हो गई। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार, दूसरी बार, कुछ नहीं। मैंने बाइक साइड पर लगाई और नीचे देखा। चैन पिछले पॉकेट में पूरी तरह फंसी हुई थी, ऐसे फंसी हुई कि बाइक हिलने की काबिल नहीं थी। मेरे दिल में एक और खौफ शामिल हो गया, क्योंकि जगह बिल्कुल सुनसान थी। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, दूर दूर तक न बंदा, न बंदे की जात। मैंने इर्द गिर्द देखा, वही दरख्त, वही झाड़ियां, वही अंधेरा, और मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा। मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मैंने सोचा थोड़ा दूर जाकर कोई मैकेनिक या पंचर की दुकान होगी, वहां से प्लास लेकर आऊंगा, चैन निकाल लूंगा। मैंने बाइक वहीं छोड़ी। पीछे डब्बे में पिज्जा रखा हुआ था। मजबूरी थी, उसे छोड़ना पड़ा। मैं पैदल अंधेरे में आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। मैं बाइक छोड़कर सड़क के किनारे किनारे आगे चलने लगा। अंधेरा इतना था कि चंद कदम
पीछे मुड़कर देखता तो बाइक भी साफ नजर ना आती। मैं बार बार पीछे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने देखना छोड़ दिया तो कुछ करीब आ जाएगा। चलते चलते तकरीबन 10 मिनट बाद मुझे एक छोटी सी दुकान नजर आई। वो बंद थी लेकिन उसके बाहर टूल बॉक्स रखा था। वो एक पंचर शॉप थी। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने घर में ही शॉप बना रखी। मैंने दुकान के बाहर से प्लास उठाई और तेजी से वापस मुड़ा। दिल चाह रहा था बस चैन निकालूं और यहां से निकल जाऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बाइक के करीब पहुंचा मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज हवा की नहीं थी, जानवर की भी नहीं, ये चबाने की आवाज थी। मैं फौरन रुक गया। अंधेरे में मैंने खुद को झाड़ियों के पीछे कर लिया। सांस रोक कर आगे झांका। मेरी बाइक के पास कोई खड़ा था, एक औरत नुमा फिगर। मैंने देखा उसने बॉक्स खोला हुआ था और उससे पिज़्ज़े के टुकड़े निकाल कर खा रही थी। मैं ये हरकत देख रहा था। फिर उसने पूरा डब्बा प्रॉपर खोला और उसका बॉक्स जमीन पर रखा और डायरेक्ट मुंह से खाने लगी। उसने अपना मुंह सीधा पिज़्ज़े पर रखा और खाने लगी, बड़ी बेरहमी से। चबाने की आवाज आप साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा गैर फितरी हद तक लंबा, गर्दन कुदरती अंदाज से ज्यादा मुड़ी हुई, आंखें अंधेरे में थी, चमक नहीं रही थी। मैं वहीं जम कर रह गया। मेरे हाथ में प्लास और हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने सर थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे उसे मेरे होने का एहसास हो गया। मैंने बस एक लम्हा लिया और पीछे हटा। उस लम्हे ने अचानक जोर से एक आवाज आई। कोई चीख नहीं, कोई लफ्ज नहीं, बस ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं होती। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैंने प्लास वहीं गिरा थी और पलट कर दौड़ लगा दी। पीछे से कोई मेरे पीछे नहीं भागा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था वो वहीं खड़ी है और देख रही है। मैं अंधेरे में दौड़ता रहा, बेसिमत। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर भागा, बस इतना याद है कि मैं रुका नहीं। उस रात मैं घर नहीं गया, मैं सीधा अपनी ब्रांच पहुंचा। मैंने वहां बैठकर सब कुछ बताया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। एक लड़के ने कहा चल सुबह देखते हैं। रोशनी में हम दोनों उस रोड पर गए। वही जगह, वही मोड़, वही बाइक वहीं खड़ी थी जैसे मैंने छोड़ी थी, लेकिन पिज्जा का बॉक्स अब भी खुला हुआ था। जमीन पर टुकड़े बिखरे हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने मुंह से नोचा हो, और उसके ऊपर जो लगी बोटियां थी वो ही खाई। बाकी जो डो थी, यानी पिज्जा का नीचे वाला हिस्सा, वो ऐसे ही जमीन पे बिखरा हुआ था। वो लड़का काफी देर खामोश रहा, फिर उसने कहा इंसान का काम नहीं लगता। हमने मिलकर बाइक को वहीं से सेट किया। मैंने वहीं ये प्लास ढूंढा और अपनी बाइक का चैन ठीक किया। वो लड़का मेरे साथ बाइक पे ही था। उसने मेरी बाइक को टो किया, क्योंकि मेरी बाइक चल तो रही थी लेकिन चैन टूट चुका था। और फिर हम उसी शॉप पर आए जहां मैंने अपनी चैन का लॉक लगवाया और उस प्लास जिसका था उसको वापस किया। मैंने उस दिन के बाद वो रोड कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे आज भी खौफ आता है ऐसी सुनसान जगहों पे जाते हुए। ये मेरा बिल्कुल सच्चा वाकया था। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर आपने ये दी तो जाकर लाजमी सुनिएगा, ये बहुत खौफनाक स्टोरीज।